So today we'll start with sessions trial, and primarily we'll deal with discharge for today because that is one of the most important aspects of the sessions trial. So let me first tell you the general principles of discharge before just telling you about the case laws. ये 6-7 principles हैं. If you remember them, and let us suppose you do not remember any case law, it doesn't matter. These principles should be in your mind while you're talking about the discharge. So discharge के लिए एक बहुत important चीज़ ध्यान में रखिएगा कि चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज से पहले डिस्चार्ज होता है. चार्ज फ्रेमिंग के बाद डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता. चार्ज एक बार फ्रेम हो गया तो आपका या तो अक्विटल होगा या कन्विक्शन होगा. सो द डिस्चार्ज स्टेज अराइव्स बिफोर द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग द चार्जेस. तो सेशंस ट्रायल में वो कहाँ आता है? सेक्शन 227 में. तो सेक्शन 227 में उसके पास अनडाउटली पावर है सेशन जज के पास टू सिफ्ट एंड वे एविडेंस and to see whether the prima facie case has been proved against the accused. prima facie level पे जो टेस्ट होगा उस एविडेंस को देखने का, शिफ्ट अवे करने का, वो अगेन वुड बी ऑफ prima facie level at the stage of discharge. अब जहाँ पे मटेरियल्स इस नेचर के हैं जो कोर्ट के सामने प्लेस किए गए हैं, which causes grave suspicion against the accused, और वो grave suspicion is not properly explained, the court will be fully justified in framing a charge and proceeding with the trial. Sessions trial में चार्ज कहाँ फ्रेम होता है? सेक्शन 228 of the CRPC. So इसमें एक और बात ध्यान रखनी चाहिए that the court does not act merely as a post office or a mouthpiece of a prosecution, but has to consider the broad probabilities of the case and the total effect of the evidence and the document produced before the court, any basic infirmities that may be riddling the prosecution case. But at this stage there cannot be a roving inquiry into the pros and cons of the matter and weigh of the evidence as if it was conducting a trial. तो मिनी ट्रायल आपको नहीं करना है. आपको ये नहीं डिसाइड करना है कि कौन सा एविडेंस क्रेडिबल है, कौन से एविडेंस इनक्रेडिबल लग रहा है आपको, किस एविडेंस पे आप ज़्यादा वेट नहीं अटैच करेंगे, एसेट्रा. ये तो ट्रायल पे आप करेंगे. यू विल डू दिस एट ट्रायल, यू डोंट डू दैट एट द डिस्चार्ज स्टेज. डिस्चार्ज स्टेज पे आपको प्राइमा फेसी लेवल पे ही कंसिडर करना है. अगर आपको प्रोसिक्यूशन का केस और जो मटेरियल प्रोसिक्यूशन ने प्लेस किया है उससे ग्रेव सस्पिशन लगता है against the accused, then you will be fully justified in framing a charge. So if on the basis of material on record the court could form an opinion that the accused might have committed the offence, it can frame the charge. Though for conviction the conclusion is required to be proved beyond reasonable doubt that the accused has committed the offence. तो चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज तक और उससे पहले आपको प्राइमा फेसी सेटिस्फैक्शन चाहिए, लेकिन एक बार चार्ज फ्रेम हो गया तो अक्यूज्ड के खिलाफ गिल्ट अगर प्रूव करनी है देन द बर्डन ऑफ प्रूफ इज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. और देखिए अगर चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज पे आपको सिर्फ माइनर सस्पिशन दिख रहा है, ग्रेव सस्पिशन नहीं, देन यू विल बी फुली जस्टिफाइड इन डिस्चार्जिंग द अक्यूज्ड एज वेल. प्राइमा फेसी इसको एक दूसरा तरीका कंसिडर करने का ये है कि मान लीजिए प्रोसिक्यूशन ने जो आपके सामने प्लेस किया है वो सारी चीजें सच है, सारी चीजें सच है. लेट अस सपोज इट्स अ गॉस्पेल ऑफ ट्रुथ. तो जो गॉस्पेल ऑफ ट्रुथ जो उसने आपके सामने प्लेस किया है, यू आर अज्यूमिंग इट टू बी अ गॉस्पेल ऑफ ट्रुथ. सो इन दैट सिचुएशन क्या वो एक ग्रेव सस्पिशन या प्राइमा फेसी केस अक्यूज्ड के खिलाफ बनाता है? इफ द आंसर इज यस, देन इन दैट सिचुएशन यू विल बी फुली जस्टिफाइड इन framing the charge. And if the answer is no, that it's not making a prima facie case, even if you are assuming the prosecution case is true, in that situation you will be fully justified in discharging the accused. There may be a situation where a minor suspicion arises in your mind regarding the role of the accused, but in that situation also, if it does not give rise to a grave suspicion against the accused, then again you will be fully justified in discharging him. So remember that at the time of framing the charges, the probative value of the material on record is not gone into, but before framing the charge, court has to apply the judicial mind on the material placed on record and must be satisfied on a prima facie level as to commission of the offence by the accused. All right. So, and another principle regarding framing of charge and discharge is that the court is required to evaluate the material and documents on record with view to find out if the facts emerging therefrom
if they are taken at the face value, discloses the existence of all the ingredients which constitutes an alleged offense. ये सारा material consider करने के बाद, if you come to a conclusion that all the ingredients of the offense have been satisfied, then you'll be fully justified in framing a charge. For this limited purpose, he is allowed to sift and weigh the evidence, as it cannot be expected, even at the initial stage, to accept all the prosecution states as gospel of truth, even if it's opposed to common sense or broad probabilities of the case. So basically, the sixth principle states that I've written for you people, that by referring a matter as gospel of truth, it doesn't mean कि if the prosecution is speaking absolute nonsense or something so absurd that it doesn't make out the offense at all, even then you are bound to believe it. No, the gospel of truth, you have to assume prosecution case only if it makes out a prima facie case. Alright, if you see, let us suppose there are ingredients for section 302 as defined by section 300 of the IPC, that is the murder. So you have to see if the ingredients of the offense of murder has been made or not. Even if you assume that if the prosecution case is gospel of truth and the prima facie case is not being established, then you don't have to just go with the belief that no, if the prosecution is saying I am bound to believe it. No, that is not the thing. Here, if the prosecution's evidence is absolutely absurd or improbable or does not even make out a prima facie case, in that situation you will be fully justified in discharging the accused. So the gospel of truth doctrine is confined to only in those situations where the ingredients of the offences on the prima facie level are made out. Alright, if not even on the prima facie level are made out, and yet the prosecution insists that charge should be framed and trial should be conducted, and you look at the material on record and find that there is absolutely no evidence, let alone prima facie evidence or a prima facie case, then in that situation you do not need to believe that the prosecution version is a gospel of truth. Alright, so let us suppose in this situation if two views are possible and one of them gives rise to suspicion only, as distinguished from the grave suspicion, minor suspicion, not grave suspicion, then the trial judge is empowered to discharge the accused in this stage. But always remember that the inquiry that he'll conduct is not in the nature to find out whether the trial will end in conviction or acquittal. ये नहीं करेगा. He is not bound to hold a mini trial there. He has to only see if it gives rise to a suspicion or grave suspicion. He doesn't have to see if I look at the material on record whether it will end in conviction or not. ये नहीं consider करेगा, because that ये सारी चीजें आपको trial पे consider करनी है, trial की stage से पहले नहीं करनी है. So these are the general principles that you will find out throughout the case laws. यही सारे principles हैं. इस पे एक additional principle मैं आपको और बता देता हूँ कि defense of the accused नहीं देखा जाता है at the stage of discharge under section 227 of the CRPC. अगर accused आ जाए, accused सिर्फ देख सकता है proceeding, that's all he can do, but he cannot say that see I have this material, please consider it. But अभी देखिएगा इसका एक exception आएगा कि I have this material and please consider it, please consider my version also, please consider my evidence which proves my defense at the discharge stage. ये नहीं होगा, because that would amount to holding a mini trial. ये सारी चीजें ट्रायल पे होंगी. तो डिफेंस का वर्जन नहीं देखा जाता है at the stage of discharge. ये जनरल रूल है. There is an exception to it, वो मैं अभी आपको बताऊंगा. तो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्चार्ज के लिए आप कोई भी वो केस लॉ कोट कर सकते हैं. यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रफुल्ल कुमार समल, आप वो एक और केस है जो अभी लेटेस्ट आया है, शिवलिंगा मूर्ति वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. सो देयर आर न्यूमरस केसेस ऑन दिस पॉइंट. यू कैन कोट एनीवन, but I'd prefer if you first start with locus classicus and just write down at the latter
that this position has been reiterated by the latest judgment of the Supreme Court in M.E. Shivalinga Murthy versus CBI. That is a more complete answer, and it avoids a lengthy answer. It favors precision and brevity and quality over quantity. Alright, so you should learn a sort of these things. So एक सवाल, अभी तो मैंने आपको जनरल प्रिंसिपल बता दी कि क्या होता है, कि जनरली अक्यूज्ड का वर्जन बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है. तो एक सवाल जो सबके दिमाग में आता है कि मान लीजिए अगर प्रोसिक्यूशन के पास कोई ऐसा एविडेंस है जो अक्यूज्ड के फेवर में है, तो क्या प्रोसिक्यूशन उसको कंपेल करवा, अक्यूज जो है, क्या प्रोसिक्यूशन को कंपेल करवा सकता है कि वो एविडेंस प्रोड्यूस करे कोर्ट के सामने? देखिए, प्रोसिक्यूशन मान लीजिए पुलिस रिपोर्ट से शुरू हुआ और कई एविडेंसेस ऐसे भी हाथ लगे प्रोसिक्यूशन को जो अक्यूज्ड की इनोसेंस एस्टैब्लिश करते हैं. ऐसे मान लीजिए कि कई एविडेंस ऐसे हाथ लगे, लेकिन आपको पता है 173 के सबसेक्शन 5 में जो भी डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं, those documents are in the nature on which the prosecution seeks to rely on. उन डॉक्यूमेंट्स का नेचर ये होता है कि prosecution seeks to rely on them. तो prosecution किन डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई करेगा? Which proves the guilt of the accused, not the innocence of the accused. तो ऐसे में क्या प्रोसिक्यूशन को अक्यूज्ड कंपेल करवा सकता है कि वो मटेरियल भी प्लेस करिए कोर्ट के सामने जो मेरी इनोसेंस एस्टैब्लिश करता है? देखिए, इसका जनरल आंसर तो मैं आपको दे देता हूं, नो. द जनरल आंसर इज नॉट एट ऑल, बिकॉज accused does not have a right to participate generally in the proceedings at this stage. वो participate नहीं कर सकता. He is at best in a position to watch and apply for some applications, but generally वो अभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता एट द डिस्चार्ज स्टेज, क्योंकि डिस्चार्ज स्टेज पे जितना भी मटेरियल देखा जाएगा वो प्रोसिक्यूशन की साइड से देखा जाएगा. तो एक सवाल उठा था, तो जनरल रूल का पहले मैं आंसर दे देता हूँ, क्योंकि जनरल रूल आपको हमेशा दिमाग में रखना है. एक्सेप्शनल सिचुएशन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में ही अराइव करती हैं. जनरल रूल इज फॉर जनरल सर्कमस्टेंस. So State of Orissa versus Devendra Nath Padi, it was reported in Supreme Court cases year 2005, volume number 1, page number 568. इसमें accused ने अप्लाई किया था under section 91 of the CRPC, if you remember that. Section 91 of the CRPC में for the purpose of investigation, inquiry or trial or other proceeding on this court कोई भी डॉक्यूमेंट समन करवा सकता है. तो उसने अप्लाई किया कि मेरे फेवर में भी डॉक्यूमेंट है प्रोसिक्यूशन के पास, पर प्रोसिक्यूशन ने फाइल नहीं किया है. सो इन दिस केस व्हाट द कोर्ट शुड डू इज इशू एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 91 ऑफ द CRPC and compel the prosecution to present those evidences which proves my innocence, और मुझे डिस्चार्ज ही कर दीजिए. ये डिस्चार्ज के लिए हो रहा है ये सारा. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर सेक्शन 91 is for the courts to see if the document is necessary or desirable. ये तो first requirement है. So the necessity or desirability would have to be seen with reference to the stage when the prayer is made for production. तो stage के हिसाब से determine होगा. So the court said in this judgment, if any document is necessary or desirable for defense of the accused, the question of invoking section 91 at the initial stage of framing of a charge would not arise, since defense of the accused is not relevant at that stage. When the section refers to investigation, inquiry or trial or other proceedings, it is to be borne in mind that under the section, a police officer may move the court for summoning the production of document as may be necessary at any stages mentioned in the section. Insofar as the accused is concerned, his entitlement, important hai, his entitlement to seek an order under section 91 would ordinarily not come till the stage of defense. जब वो अपने डिफेंस में एंटर करता है तभी ऐसे सिचुएशन में वो सेक्शन 91 का बेनिफिट ले सकता है.
So when the section talks about document being necessary or desirable, it is implicit that necessity and desirability is to be examined considering the stage को consider करना होगा कि किस stage पे application for and a prayer for summoning and production is made, and the party who makes it, whether the police officer or the accused, ये determine किया जाएगा कि किस stage पे उन्होंने किया है और कहाँ पे उसको समन किया गया, and what is its necessity, is it necessary or desirable to produce such a document or not. So going further, if under section 227 what is necessary and relevant is only the record produced in terms of section 173 of the CRPC, the accused cannot at that stage invoke section 91 to seek the production of any document to show his innocence. Under section 91, summons for production of a document can be issued by a court under a written order of an officer in charge of police station, can also direct production thereof of any documents that are required under section 91. Section 91 does not confer any right on the accused to produce a document in his possession to prove his defense. Section 91 presupposes that when a document is not produced, process may be initiated to compel the production thereof. So general rule क्या है? This general rule that the court has established कि discharge की stage पे पहली बात I'll just make it very brief कि discharge की stage पे पहला प्रिंसिपल ये है कि 91 का तो यूज तब होता है कि जब कोर्ट को लगे डिजायरेबल है, और दूसरा पॉइंट ये है कि व्हेन द अक्यूज्ड का मटेरियल कंसीडर ही नहीं करना है स्टेज पे, देन हाउ कैन द अक्यूज्ड अप्लाई फॉर सेक्शन 91. तो स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस देवेंद्र नाथ पाधी में कोर्ट ने मना कर दिया इट कि accused cannot have resort to section 91 to produce a document in his favor. तो ये जनरल पोजीशन से लाइक करता है. अभी मैंने आपको एक जनरल प्रिंसिपल बताया कि जनरल प्रिंसिपल इज कि डिफेंस का मैटर, डिफेंस अक्यूज्ड का मटेरियल नहीं देखा जाता है डिस्चार्ज स्टेज पे, ठीक है. अक्यूज्ड का जितना भी मटेरियल है वो सारा ट्रायल स्टेज पे देखा जाएगा. नाउ इट्स द टाइम टू टॉक अबाउट द एक्सेप्शन. देखिए, हर जनरल रूल का कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर होता है, इसका भी है, और ये 7 दिसंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने केस में डिसाइड किया. केस का नाम है नित्या धर्मानंद वर्सेस श्री गोपाल श्रीलम रेड्डी, ठीक है. 7 दिसंबर 2017 को ये डिसाइड हुआ. तो कोर्ट ने तो रीइटरेट किया, वही पुरानी पोजीशन रीइटरेट की कि इट इज क्लियर व्हाई द ऑर्डिनरली कोर्ट हैज टू प्रोसीड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल प्रोड्यूस्ड with the charge sheet for dealing with the issue of charge, but if the court is satisfied there is a material of sterling quality. Sterling quality का मतलब, sterling का literal मतलब होता है जो बहुत चमकदार हो. In this sense कोर्ट इसको यूज कर रहा है ऐसे बताने के लिए it is of a very high quality and very high credibility. तो ऐसा कोई मटेरियल है जिसको इन्वेस्टिगेटर या प्रोसिक्यूटर ने withheld कर लिया है, then the court is not debarred from summoning or relying upon the same if the document is not part of the charge sheet. अगर चार्ज शीट के साथ 2 डॉक्यूमेंट नहीं लगाया है, अगर मान लीजिए प्रोसिक्यूशन को ये लग गया कि अगर ये एविडेंस हमने साथ में भेज दिया तो ऐसे में तो अक्यूज की इनोसेंस साबित हो जाएगी या प्रोसिक्यूशन केस बहुत कमजोर पड़ जाएगा. तो ऐसे में डिस्चार्ज की स्टेज पे द अक्यूज्ड कैन अप्लाई टू द कोर्ट अंडर सेक्शन 91 ऑफ द CRPC to summon such material which is of sterling quality. लेकिन इसके लिए एक चीज जरूरी है कि कोर्ट को भी सेटिस्फाइड होना होगा. ये फर्स्ट क्राइटेरिया है कि कोर्ट को भी सेटिस्फाई होना होगा whether such document is necessary or desirable. तो ये एक एक्सेप्शन है. पर अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर इन्वेस्टिगेटर और प्रोसिक्यूटर इज इन अ पोजिशन टू विदहोल्ड सच डॉक्यूमेंट, तो ये अक्यूज्ड को कैसे पता चलेगा कि उसके खिलाफ क्या डॉक्यूमेंट विदहेल्ड किया गया है और क्या नहीं किया गया है. एक सिचुएशन तो वो हो सकती है कि अगर अक्यूज्ड को कोई पर्सनल नॉलेज किसी और सोर्स से मिल गई है कि तुम्हारे फेवर में भी एविडेंस है पर वो नहीं सबमिट किया गया है कोर्ट को, चार्जशीट के साथ नहीं भेजा गया है जिस पे प्रोसिक्यूशन रिलाई करना चाहता है. क्योंकि देखिए, प्रोसिक्यूशन किन डॉक्यूमेंट पे रिलाई करता है? जिस पे अक्यूज्ड की गिल्ट साबित हो, जो प्रोसिक्यूशन का केस प्रूव करे. अगर प्रोसिक्यूशन का केस प्रूव ही नहीं हो रहा
तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अक्यूज इज इनोसेंट। अगर चार्जशीट, अगर अक्यूज के फेवर में ही सारा मटेरियल होता तो चार्जशीट क्यों भेजेगा प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज? वो तो सीधे फाइनल रिपोर्ट लगा देंगी, है ना, वो तो सीधे कह देंगे कि इन आवर ओपिनियन नो सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। लेकिन जब वो चार्जशीट भेजते हैं तो और फिर वो डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं मैजिस्ट्रेट को जिसपे प्रोसिक्यूशन प्रपोजेस टू रिलाई ऑन अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 5, देन इन दैट सिचुएशन इट कैन बी अज्यूम्ड कि प्रोसिक्यूशन को वो भेजने मटेरियल भेजने की जरूरत नहीं है जिसपे वो रिलाई करना ही नहीं चाहता। और ऑब्वियसली प्रोसिक्यूशन कभी भी किसी ऐसे मटेरियल पे रिलाई नहीं करेगा जो उसके खिलाफ जाता हो। क्या आप कभी कोई ऐसी बात बताते हैं जो आपके खिलाफ चली जाए? लेट अस सपोज यू आर इन अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू एक्सप्लेन समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो क्या आप ऐसी बातें भी बताएंगे जो आपकी गलती एस्टैब्लिश करे या ये साबित कर दे कि आप ही गलत बोल रहे हैं? ऑब्वियसली जनरली अ मैन, ये प्रिजम्पशन है कि जनरली अ मैन डज नॉट वांट टू से एनीथिंग दैट गोज अगेंस्ट हिज ओन केस, जो उसको ही प्रेजुडिस कर दे। द जनरली एक लीगल प्रिजम्पशन है। तो आदमी तो जानबूझ के कुछ ऐसा कहता नहीं है। सो तभी प्रोसिक्यूशन जब उन डॉक्यूमेंट्स को भेजने की कोशिश करेगा जिसपे वो रिलाई नहीं करता है तो वो उसका केस प्रेजुडिस कर सकता है। तो दैट इज व्हाई द प्रोसिक्यूशन इज नॉट बाउंड टू सेंड दोस डॉक्यूमेंट्स। तो हम घूम फिर के उसी सवाल पे आते हैं कि अक्यूज्ड को कैसे पता चलेगा? पर्सनल नॉलेज तो आप हटा दीजिए कि लेट अस सपोज वो इन्फ्लुएंशियल है तो हो सकता है उसे पर्सनली पता चल जाए, लेकिन इन अ सिचुएशन वेयर ही डज नॉट नो तो वो कैसे करेगा? ही जस्ट हैज एन आइडिया कि कुछ मटेरियल कलेक्ट किया गया है और हो सकता है वो मेरे फेवर में हो, पर वो भेजा गया नहीं। सो व्हाट विल हैपन इन दिस सिचुएशन? हाउ विल यू नो कि इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या कलेक्ट हुआ? 207 में तो वही आपको डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएंगे, 161, 164 कन्फेशन स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड, और 173 के सबसेक्शन 5 में और जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वही भेजे जाएंगे। वो तो शायद ना मिले जो जिसको प्रोसिक्यूशन ने विदहेल्ड किया है। सो नाउ आई विल टेल यू, सी राइट टू अ फुल एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन एंड इट्स डिस्क्लोजर। सर सीआरपीसी को आप हटा दीजिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। तो ड्यूटी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की ये है कि दे शुड अराइव एट ट्रुथ। ऑलराइट, सो right to a full and fair investigation and its disclosure will be a constitutional requirement when you read Article 21 with Article 19. So this was elaborated upon by the Supreme Court in Siddharth Vasisht alias Manu Sharma versus State and City of Delhi. So I'll just read what are the important provisions, what are the important points that the Supreme Court held in this case. So Supreme Court says that primary duty of the public prosecutor is to ensure the accused is punished, but his duties also extend to ensuring fairness in the proceedings and also ensure that all relevant facts and circumstances are brought to the notice of the court for a just determination of the truth so as due justice prevails. The fairness of investigative process as to maintain citizens' right under Article 19 and 21 and also the active role of the court in criminal trial has been exhaustively dealt with by the Supreme Court. Finally, it was held that it is the responsibility of the investigative agency as well as the courts to ensure that every investigation is fair and does not erode the freedom of an individual except in accordance with law. It was also held that one of the established facets of a just, fair and transparent investigation is the right of an accused to ask for all the documents that he may be entitled to under the scheme contemplated by the CRPC. So, going further, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि अगर आप सेक्शन 170 को सेक्शन 173 के साथ रीड करें, जो कि करना चाहिए, तो 5 में लिखा है कि 170 में
जो भी डॉक्यूमेंट पहले भेज दिए गए हैं उसके बाद वो डॉक्यूमेंट भी भेजे जाएंगे एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ चार्जशीट, जिस पे प्रोसिक्यूशन प्रपोजेस टू रिलाई ऑन। तो वो डॉक्यूमेंट कहाँ भेजे जाते हैं जो पहले भेजे गए हैं? दे आर सेंड अंडर 170 सबसेक्शन 2, उसके अंदर भेजे जाते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज read that those documents are to be sent under section 170 subsection 2। तो पुलिस फाइल जो होगी, एक प्रोसिक्यूशन का होता है, एक कोर्ट फाइल होती है जिसको जुडिशियल फाइल कहते हैं। तो पुलिस फाइल में वो एविडेंस जरूर हो सकता है जो स्टर्लिंग क्वालिटी का है और अक्यूज्ड के फेवर में, एंड इफ द अक्यूज्ड नोज that material is in my favor and it's of sterling quality, और जो इतने जो इस क्वालिटी का है कि इफ इट कम्स बिफोर द कोर्ट देन आई विल बी डिस्चार्ज्ड, तो उस केस में ही कैन रिजॉर्ट टू सेक्शन 91 एंड गेट द डॉक्यूमेंट समन्ड। So the Supreme Court in this case said, Siddharth Vasisht 1, that the right of the accused to receive documents and statements submitted before the court is absolute, and it must be adhered to by the prosecution, and the court must also ensure to supply the documents, statements to the accused in accordance with law. So, liberty of the accused cannot be interfered with except under the due process of law. The expression due process of law shall deem to include a fairness in trial. The court gives the right to the accused to receive all documents and the statements as well as to move an application for production of any record or evidence in support of his case. The constitutional mandate and the statutory right given to accused to place it places an implied obligation upon the prosecution and the prosecutor to make a full and fair disclosure. The concept of fair disclosure would take within its ambit furnishing of a document which the prosecution relies upon, whether filed in the court or not, चाहे वो कोर्ट में फाइल हुआ हो या ना हुआ हो। देखिए, मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ अभी कि अक्यूज पता कैसे करेगा कि वो स्टर्लिंग क्वालिटी का है या नहीं। तो कोर्ट ने इस राइट को सिर्फ सेक्शन 207 ऑफ द सीआरपीसी में ही नहीं देखा। 207 में तो डॉक्यूमेंट्स देने ही पड़ते हैं, उसने आर्टिकल 21 और 19 को भी रीड अप किया कि एक तो ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है कि फुल एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन में जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे अक्यूज्ड को फर्निश करने चाहिए। इट इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू सेक्शन 207 जिसमें डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं इफ द केस इज इंस्टीट्यूटेड अपॉन द पुलिस रिपोर्ट। ऑल राइट, so the document should essentially be furnished to the accused, and even in cases where during investigation a document is bona fide obtained by the investigative agencies and in the opinion of the prosecutors is relevant and would help in arriving at truth, the document should also be disclosed to the accused. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने किस एक्सप्रेशन का यूज किया? नॉट इस एक्सप्रेशन का यूज नहीं किया कि इट वुड हेल्प इन अराइविंग एट द कन्विक्शन ऑफ द अक्यूज्ड, बट रादर सेड इट वुड हेल्प इन अराइविंग एट ट्रुथ। तो सच, क्रिमिनल ट्रायल का पर्पस क्या है? सच जानना, जस्टिस करना, न्याय करना। अगर किसी गलत आदमी को कन्विक्ट कर दिया गया है, उसको करना नहीं चाहिए था, दैट इज अ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि अगर डॉक्यूमेंट ऐसा है जो बोनाफाइड कलेक्ट कर लिया है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने और वो रेलेवेंट है एंड वुड हेल्प इट अराइविंग एट ट्रूथ ऑफ द केस, तो ट्रूथ ऑफ द केस में इनोसेंस ऑफ द अक्यूज भी शामिल है, तो इन दैट सिचुएशन दैट डॉक्यूमेंट अक्यूज्ड को भी डिस्क्लोज करना चाहिए। सो सुप्रीम कोर्ट फर्दर सेड, एज ऑलरेडी नोटिस्ड, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 207 of the CRPC has a material bearing on this subject and makes an interesting reading. 207 of the CRPC not only requires or mandates the court that the court shall without delay and free of cost furnish the accused copies of police report, FIR, statement and confessional statement under section 161, 164, whom the prosecution wishes to examine as a witness, are all included. But if you see, in contradistinction to the provision of section 173 of the CRPC, जो use करता है expression on which the prosecution proposes to rely on under its subsection 5, ये words का use नहीं हुआ है 207 में. These words are not used.
So therefore, the Supreme Court in this case held that the provision of 207 of the code will have to be given a liberal and a relevant meaning to achieve its object. कोर्ट यहाँ पे कहाँ गया? उसने कहा 207 के ऑब्जेक्ट पे जाते हैं, सिर्फ उसकी लिटरल वर्डिंग पे नहीं. तो लिबरली कंस्ट्रू किया उन्होंने 207 और उसके ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए बोला कि द डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू द मैजिस्ट्रेट अलोंग विद द रिपोर्ट अंडर 173 के 5 में तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो तो देना ही है, क्योंकि वहां पे एक्सप्रेसली लिखा है. बट इट वुड ऑल्सो इंक्लूड द डॉक्यूमेंट्स विच हैव टू बी सेंट टू द मैजिस्ट्रेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ 172. तो 172 में आप वो डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं जो चार्जशीट से पहले आपने भेजा है, कि वो डॉक्यूमेंट्स ही हमने कलेक्ट किए तो मैजिस्ट्रेट के सामने सबमिट कर दिया, कुछ चीज़ें सीज की हैं तो वो सबमिट कर दिया, वो और कोई भी डॉक्यूमेंट जो हो सकता है उसकी इनोसेंस भी इस्टेब्लिश करे तो वो भी आपने भेजे. तो अक्यूज्ड के पास राइट है उनका डिस्क्लोजर करने का. सो राइट फॉर अ फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट ने इसको सिर्फ 207 में नहीं पाया, उसने 207 को और लिबरली कंस्ट्रू किया और बोला कि the right of the accused with regards to disclosure of document, even though is a limited right and it's codified and is the investigation and it is a foundation of a fair investigation, but here the rights of the accused flow from codified law, that is the CRPC, as well as the equitable concepts of constitutional jurisdiction, as substantial variation to such procedure would frustrate the very basis of the trial. तो कोर्ट ने बोला merely because आप 207, 243 और 173 को अगर आप साथ में पढ़े then you'll find that such accused के पास उन डॉक्यूमेंट्स को लेने का राइट हो सकता है, लेकिन आप सिर्फ CRPC में ही मत रहिए. आप इस फेयर डिस्क्लोजर का राइट आप कहाँ से और रीड करेंगे? आर्टिकल 21 से. And right to a full fair investigation is a fundamental right. अगर fair investigation ही नहीं है तो what is being happening? Then that is a malicious prosecution, है ना? Fair investigation होनी चाहिए हर केस में, and the effort should be to arrive at truth, not merely the conviction of the accused. Conviction तो तब करवाई जब वो guilty है, जब आपको भी पता है वो innocent है. Then why are you needlessly making him suffer? An innocent person should not suffer in a court of law. That is the abuse of the process of the court. तो इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धार्थ वशिष्ठ वाले में बोला था कि to claim documents within the purview of the scope of section 207, 243 and with the provisions of section 173 in its entirety, the power of the court under section 91 of the CRPC to summon documents signifies and provides precepts which will govern the right of the accused to claim the copies of the statement and the documents which the prosecution has collected during investigation and upon which they rely. इसमें वो भी डॉक्यूमेंट आते हैं जो उसकी इनोसेंस भी एस्टैब्लिश करे. It will be difficult for the court to say that the accused has no right to claim the document or copies of the document or request the court for production of a document which is a part of the general diary to subject to satisfying the basic ingredients of the law stated therein. तो कोर्ट बेसिकली कह रहा है कि बहुत डिफिकल्ट होगा कोर्ट के लिए कहना कि accused has no right to claim the copies of the document or request the court for the production of the document which is the part of the general diaries, अगर basic ingredients of the law satisfy हो गए तो. A document which has been obtained bona fide and has bearing on the case of the prosecution and in the opinion of the public prosecutor, the same should be disclosed to the accused in the interest of justice and fair investigation and trial. It should be furnished to the accused, and then the document should be disclosed to the accused, giving him a fair defense, particularly where the non-production or disclosure of such document would have an adverse effect on the administration of criminal justice system, and the defense of the accused may be prejudicially be affected. तो ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि इन सारे केसेस में it is the bounden duty and it is a solemn duty of the court, जहाँ पे provision of the section satisfy हो गए हैं, there they have to mandatorily give the accused also a copy of such document.
इसी पे एलैबोरेशन किस केस में हुआ था? वीके शशिकला वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। 27 सितंबर 2012 को ये डील हुआ। तो ये सारी बातें मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अक्यूज वो क्लेम कैसे करेगा। देखिए, इस क्लेम करने की जो नींव थी वो रख दी गई थी, द वेरी फाउंडेशन ऑफ क्लेमिंग सच डॉक्यूमेंट्स, जो स्टर्लिंग मटेरियल है, ये रख दी गई थी आपके नित्यानंद वाले केस में, जो एक्सेप्शन का अवार्ड किया गया था। और उसको जानने के लिए कि वो डॉक्यूमेंट है या नहीं, इसका फाउंडेशन सिद्धार्थ वशिष्ठ एलियास मन्नू शर्मा के केस में रखा गया। वीके शशिकला ने उसी चीज को और एक्सपैंड किया और बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि परसेप्शन ऑफ प्रेजुडिस इज फॉर द अक्यूज टू डेवलप एंड सेम हैज टू बी फाउंडेड ऑन अ रीजनेबल बेसिस, and it is the duty of the court as well as the prosecution to ensure that the accused should not be made to labor under such perception, and the same must put to rest at earliest. Such a view, according to the Supreme Court, is an inalienable attribute of the process of fair trial that Article 21 guarantees to every accused. So the question regarding compliance or non-compliance under section 207 of the CRPC would not be confined to just confined to CRPC alone. It will travel beyond the strict language of the CRPC and touch upon the larger doctrine of the fair trial, which has been built up by the courts by the purposive interpretation of Article 21. So it is not the stage of making request, तो ये सारे कंसिडरेशन नहीं होंगे। इट इज नॉट द स्टेज ऑफ मेकिंग द रिक्वेस्ट, द इफ्लक्स ऑफ टाइम या डिले जो हो गया है, और द प्रायर कंडक्ट ऑफ द अक्यूज, दैट इज मटेरियल। व्हाट इज सिग्निफिकेंट is if in a given situation the accused comes to the court contending that some papers forwarded to the court by investigative agencies have not been exhibited by the prosecution as the same favors the accused, then the court must concede the right in the accused to have access to such documents if so claimed. अगर accused ने claim किया कि कई ऐसे documents थे जो उनके पास थे जो कोर्ट को सबमिट किए तो गए हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने उसे एग्जिबिट नहीं बनाया है बिकॉज इट प्रूव्स द इनोसेंस ऑफ द अक्यूज्ड, देन अक्यूज्ड कैन ऑलवेज डिमांड द प्रोडक्शन ऑफ सच डॉक्यूमेंट। यही कोर्ट ने बोला कि द अक्यूज्ड मस्ट बी अक्यूज, ये कहना ठीक नहीं होगा कि अक्यूज्ड को तब तक वेट करना होगा जब तक ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ और तब उसकी प्ली ऑफ प्रेजुडिस क्लेम करेंगे। प्ली ऑफ प्रेजुडिस अगर स्टेज पे पहले ही आ गई और कोर्ट ने पाया कि ऐसा डॉक्यूमेंट जो स्टर्लिंग नेचर का है एंड इट हैज बीन विदहेल्ड, लेट अस सपोज कोर्ट की फाइल के पास है पर एग्जिबिट किया नहीं गया, वही डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड हुए हैं अक्यूज्ड को जो जिस पे प्रोसिक्यूशन प्रपोजेस टू रिलाई अपॉन, तो कोर्ट बोलेगा कि तो मेरे फेवर का एविडेंस है, अगर आपने इसी स्टेज पे कंसिडर नहीं किया तो डिले विले और रिफ्लेक्स ऑफ टाइम इज नॉट अ कंसिडरेशन, नाइदर द कंडक्ट ऑफ द अक्यूज्ड। ये देखा जाएगा कि फेयर ट्रायल हो रहा है या नहीं। तो वो बोलेगा कि अगर आप वो मैटर, वो डॉक्यूमेंट्स बुला लें, वो मटेरियल्स बुला लें अंडर सेक्शन 91, तो स्टर्लिंग क्वालिटी का एविडेंस आपको मिल जाएगा, वो मेरी इनोसेंस एस्टैब्लिश करता है, तो मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा। तो क्यों मेरे खिलाफ पूरा ट्रायल चले, विच विल बी एन अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, क्यों मैं ट्रायल झेलूं 6 साल 10 साल, बिकॉज that is also an abuse of the process of the court. A party is needlessly harassed both financially, economically and psychologically. तो ऐसे केस में it is better to avoid all this. तो इसी में बोला शशिकला वाले जजमेंट में कि you can use this provision to have a full fair disclosure. तो ऐसे accused को पता चलेगा कि उसके फेवर में चीज है या नहीं, डॉक्यूमेंट या मटेरियल है या नहीं। So ये जजमेंट के थ्रू वो राइट क्लेम करेगा। फिर वो क्या करेगा, जुडिशियल फाइल और पुलिस फाइल में कंपेयर करेगा कि उसके फेवर में कौन सा एविडेंस है या नहीं, है ना। एंड देन व्हाट विल ही फाइनली डू इज दैट ही विल देन अप्लाई फॉर द नित्यानंद जजमेंट। जो नित्यानंद जजमेंट में दिशा के अगर इतनी स्टर्लिंग क्वालिटी का है जो अक्यूज्ड के फेवर में जाता है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ही कैन बी डिस्चार्ज्ड इवन दो जनरली
स्टर्लिंग अक्यूज्ड के फेवर का एविडेंस नहीं देखा जाता है उस केस में, प्रोसिक्यूशन का ही देखा जाता है। एक जनरल प्रिंसिपल ये भी पॉसिबल है कि देखिए कि ये तुम इसने जनरल रूल का वायलेशन तो किया नहीं, ये मेरा अपना ओपिनियन है, आई टेल यू कि देखिए जनरल प्रिंसिपल क्या है कि अक्यूज्ड की साइड से मटेरियल नहीं कंसिडर होता। तो ये जो जजमेंट है नित्यानंद वाला, इसने जनरल रूल का वायलेशन किया नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि ये तो मटेरियल ऑफ स्टर्लिंग क्वालिटी तो प्रोसिक्यूशन के ही पास है ना, तो प्रोसिक्यूशन का ही मटेरियल कंसिडर कर सकते हैं आप लोग एट द स्टेज ऑफ डिस्चार्ज। और जब एट द स्टेज ऑफ डिस्चार्ज यू कैन ओनली कंसिडर द मटेरियल ऑफ द प्रोसिक्यूशन और वो स्टर्लिंग क्वालिटी का एविडेंस है, देन इन दैट सिचुएशन आपने जनरल रूल का वायलेशन किया ही नहीं, बिकॉज ऑल यू आर लुकिंग एट इज द मटेरियल दैट इज विद द प्रोसिक्यूशन। यू आर नॉट लुकिंग समथिंग स्पेसिफिक फ्रॉम द डिफेंस साइड। डिफेंस की साइड से आप कुछ नहीं मंगा रहे, आप तो डिफेंस को बस एक मौका दे रहे हैं कि हाँ प्रोसिक्यूशन की साइड पे और मटेरियल है जो उन्होंने दिखाया नहीं है, वो भी मंगा लीजिए। अक्यूज की साइड से थोड़ी ना कुछ ले रहे हैं, तो अक्यूज की साइड से तो मटेरियल आप नहीं कंसीडर कर सकते, दैट इज द जनरल रूल। लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन के पास अक्यूज के फेवर में मटेरियल है and if it's of sterling quality and the court regards it as material, then in those situations it is obligatory upon the court in the matter of fair trial to have that material be summoned before it. All right, तो ये जनरल रूल याद रखिएगा। पहले तो जनरल रूल याद रखिएगा कि जनरली उनकी तरफ से सेक्शन 91 की एप्लीकेशन कुछ नहीं कंसिडर हो सकती जनरली। फिर अब वो किस केस में एस्टैब्लिश हुआ? स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस देवेंद्रनाथ पार्टी में। ऑलवेज रिमेंबर दैट। एक्सेप्शन जो जनरल रूल का है वो नित्या धर्मानंदा वर्सेस श्री गोपालम रेड्डी का है, वो फिर याद रखिएगा। और फिर आप उसको क्लेम कैसे करेंगे, आपको ध्यान कैसे आएगा, तो उसके लिए वीके शशिकला वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का जजमेंट है। और फाइनली यू कैन ऑल्सो रीड दैट judgment for a fair trial, that is Siddharth Vasisht alias Manu Sharma. All of this has been provided in the study notes और आपको मिल जाएगा and you can refer to it without any trouble. तो ध्यान रखिएगा, exception does not override the norm. आप जनरल रूल हमेशा सबसे पहले ध्यान में रखेंगे और जनरल प्रिंसिपल सबसे पहले ध्यान में रखेंगे, जो मैंने लेक्चर की शुरुआत में बताया। So अब क्योंकि इतना मैंने बेसिक बता दिया है, so I can start with the reading of the Bayer Act. So I'll just read the first provision under section 225 of the CRPC. It says, every trial before a court of session, the prosecution shall be conducted by a public prosecutor. देखिए, if you should remember that the public prosecutor is appointed where under section 24 of the CRPC. अब आपको याद होगा सेक्शन 209 में मैजिस्ट्रेट को एट द टाइम ऑफ कमिटल ऑफ द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन, उसको लास्ट क्लॉज में विच वाज क्लॉज डी, उसमें नोटिफाई भी करना होता था पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि द केस हैज बीन कमिटेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन। इसीलिए क्योंकि लेजिस्लेचर ने मैंडेट किया है कि प्रोसिक्यूशन कोर्ट ऑफ सेशन में सिर्फ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही कंडक्ट कर सकता है। सो दिस इज व्हाई द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज नोटिफाइड एट द स्टेज ऑफ 209 क्लॉज डी। देन द नेक्स्ट थिंग वी कंसिडर is section 226, opening case for prosecution. When the accused appears or is brought before the court in pursuance of a commitment of a case under section 209, the prosecutor shall open his case by describing the charge brought against the accused and by stating by what evidence he proposes to prove the guilt of the accused. एक चीज याद रखिएगा कि पहले वो बताएगा कि चार्ज क्या है, व्हाट इज द चार्ज दैट हैज बीन ब्रॉट अगेंस्ट हिम। फिर वो बताएगा कि बाय व्हाट एविडेंस ही प्रपोजेस टू प्रूव, बाय यूजिंग दोज एविडेंस ही प्रपोजेस टू प्रूव गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड, क्या क्या एविडेंस उसके फेवर में। एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज द स्टेज ऑफ डिस्चार्ज।
देखिए अभी और भी नुआंसेस हैं that I have to tell you on this stage. तो डिस्चार्ज पे पहले रीड कर देता हूँ. इफ अपॉन द कंसिडरेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड द डॉक्यूमेंट सबमिटेड देयर विद, द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड देयर विद. तो अभी तक तो अक्यूज सीन में आया नहीं है ना, तो ये कौन से हैं, किसके हैं? प्रोसिक्यूशन का ही वर्जन है. तो अभी तो प्रोसिक्यूशन का ही एविडेंस और मैटर मटेरियल कंसिडर हो रहा है ना, तो तभी 227 में सिर्फ प्रोसिक्यूशन का ही वर्जन देखा जाता है, अभी अक्यूज सीन में नहीं आया है. And after hearing the submission of the accused and the prosecution in this behalf, submission consider होगा. That is submission, not material. Accused का material या accused का evidence नहीं consider होता, submission consider होता है. Obviously बात है, अगर submission भी ना consider किया जाता तो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन भी कैसे अप्लाई करता, या वो सेक्शन 91 और जितना भी अभी मैंने बताया बेनिफिट्स हैं उसके लिए कैसे अप्लाई करता. दैट इज व्हाई उसके लिए उसका सबमिशन कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मटेरियल और रिकॉर्ड ऑफ द केस विच इंक्लूड्स एविडेंस डॉक्यूमेंट वो अक्यूज्ड का नहीं कंसीडर होगा. वो किसका कंसीडर होगा? वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसिक्यूशन का कंसीडर होगा. फिर आगे पढ़ते हैं. एंड द प्रोसिक्यूशन इन दिस बिहाफ, दोनों के सबमिशन सुनने के बाद द कोर्ट कंसीडर देयर इज नॉट सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द अक्यूज्ड, ही शैल डिस्चार्ज द अक्यूज्ड एंड रिकॉर्ड फॉर हिज रीजंस फॉर डूइंग सो. एक चीज का ध्यान रखिएगा, डिस्चार्ज जब अक्यूज को डिस्चार्ज किया जाता है ना तो रीजंस रिकॉर्ड करने होते हैं, बट एट द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग द चार्ज नो रीजंस आर टू बी रिकॉर्डेड. चार्ज फ्रेम करने के लिए आपको रीजंस बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिस्चार्ज करने के लिए आपको रीजंस बताने की जरूरत है. ऑलराइट, देन फिर मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जो ग्रांट ऑफ सैंक्शन से भी इस केस में रिलेट करेंगे. अब मान लीजिए डिस्चार्ज स्टेज पे है, डिस्चार्ज की स्टेज है और चार्ज नहीं फ्रेम हुआ है अभी, मतलब तो ऐसे केस में मान लीजिए पब्लिक सर्वेंट का प्रोसिक्यूशन हो रहा है और वो बोलता है कि जो सैंक्शन जो ग्रांट हुई है मेरे खिलाफ प्रोसिक्यूशन करने में वो इर्रेगुलर है, इनवैलिड है या इलीगल है. वो ये नहीं कह रहा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, प्ली ये नहीं है कि सैंक्शन हैज नॉट बीन ग्रांटेड एट ऑल. प्ली ये है कि सैंक्शन ग्रांटेड इज इनवैलिड और इलीगल. तो ऐसे केस में जो इनवैलिडिटी और इलीगैलिटी है ये कहाँ कंसिडर होगी? ये ट्रायल पे कंसिडर होगी, ये एट द स्टेज ऑफ डिस्चार्ज नहीं हो सकती. इफ अ पब्लिक सर्वेंट बीइंग प्रोसिक्यूटेड, ओमिशन टू गिव सैंक्शन तो हो सकती है कि सैंक्शन है ही नहीं, लेकिन जो इरेगुलर या इनवैलिड या इलीगल ग्रांट ऑफ सैंक्शन सिर्फ और सिर्फ ट्रायल की स्टेज पे कंसिडर हो सकती है. इस पे दिनेश कुमार वर्सेस चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया का भी जजमेंट है, और ये जजमेंट अभी ये लॉ अभी रीइटरेट हुआ सीबीआई वर्सेस प्रोमिला वीरेंद्र कुमार के केस में. इट वाज डिसाइडेड ऑन 25 सितंबर 2019. फिर डिस्चार्ज से लेके और भी चीजें हैं. इसमें एक मैटर 319 का भी फॉल करता है. 319 को तो मैं अभी आगे डील करूंगा जब हम चार्ज के बाद एंटरिंग अपॉन डिफेंस वाला मैटर कंप्लीट कर लेंगे. देन आई विल डील विद 319 ओरल आर्ग्यूमेंट्स और आपका सेक्शन 300 एंड 309 जो ओवरलैप करते हैं स्टेज ऑफ ट्रायल से. तो 319 का बेयर एक्ट पढ़ लीजिएगा, बेयर एक्ट का प्रोविजन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी तो उस पर एलैबोरेशन करने पे तो आप लोग को कंफ्यूजन हो जाएगी, बट आई विल एलैबोरेट इट इन ग्रेट डिटेल लेटर. तो एक सवाल और उठता है कि क्या मान लीजिए किसी पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया गया, लेट अस सपोज 6 अक्यूज्ड हैं, 6 में से 2 को डिस्चार्ज कर दिया गया और एंड में डिस्चार्ज की एप्लीकेशन से के टाइम पे उन 2 अक्यूज्ड के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट भेजी गई. तो क्या ऐसे केस में जिन अक्यूज्ड को डिस्चार्ज किया गया है उनको बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 319 ऑफ द सीआरपीसी रोप इन किया जा सकता है? देन द आंसर टू दैट इज यस, हाँ किया जा सकता है. एक केस हुआ था जहां पे 7 लोग थे और दे वर अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस ऑफ मर्डर एंड रॉबरी. ट्रायल कोर्ट ने उनमें से एक को डिस्चार्ज किया और 4 और लोगों को डिस्चार्ज किया.
ignoring the supplementary charge sheet against them. और फिर एंड में जब थोड़ा और मटेरियल सामने आया, so what they did is call back the order of discharge and उनको 319 के यूसेज से वापस ट्रायल स्टैंड करने के लिए समन कर लिया। तो ऐसे में कोर्ट के सामने ये सिचुएशन थी कि क्या ये ऑर्डर वैलिड है या नहीं, कि एक बार आप डिस्चार्ज कर दिए तो क्या आप 319 से घसीट सकते हैं वापस उनको ट्रायल में या नहीं। तो इसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि when the court is satisfied that the existence of ample material against the person is to proceed, when there is an ample material against the accused and he can be proceeded with at the trial, be it due to filing of supplementary charge sheet, test identification parade, forensic science laboratory, or new statement of evidence recorded under 161 of the CRPC, as well as disposition of evidence, then in those situations the courts are fully justified in resorting to section 319 to summon those persons who have been earlier discharged. All right. तो ये ध्यान रखिएगा कि इट इज पॉसिबल कि डिस्चार्ज होने के बाद भी 319 में आपको घसीटा जा सकता है, if at all there is a new material which establishes the guilt of such accused person. All right. तो ये किस में हेल्ड हुआ था? ये दीपू एलियास दीपक वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में हेल्ड हुआ था। 14 दिसंबर 2018 को डिसाइड हुआ है। तो देखिए, एक लोकस क्लासिकस डिस्चार्ज के लिए मैं आपको बता देता हूँ, वो है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रफुल्ल कुमार समल, 6 नवंबर 1978 को डिसाइड हुआ। तो ये लोकस क्लासिकस मैं प्रेफर करूँगा कि आप थियोरेटिकल स्टेट की जब तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर मेंशन करें। देखिए, वही गाइडलाइंस हैं जो डिस्चार्ज की जो मैंने आपको बताई हैं, बट फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस आई जस्ट रीड इट। और बाय द वे इसमें गाइडलाइंस पूरी नहीं है, गाइडलाइंस तो और डेवलप हुई हैं आगे के जजमेंट में, आगे के कई जजमेंट्स में। तो इसीलिए मैंने जब आपको गाइडलाइंस बताई थी तो 7 गाइडलाइंस थी, जनरल गाइडलाइंस, लेकिन प्रफुल्ल कुमार समल में सिर्फ 4 दी गई हैं। सो आई विल जस्ट रीड ऑफ प्रफुल्ल कुमार समल that the judge, while considering the question of framing the charge under section 227 and 228 of the CRPC, has the power to sift and weigh evidence for the limited purpose of finding out whether the prima facie case has been made against the accused, where the material placed before the court discloses grave suspicion against the accused, the court shall be fully justified in framing the charge. The test to determine a prima facie case would depend upon the facts of each case, and it is difficult to lay down a rule of universal application. By and large, if 2 views are possible, the judge is satisfied the evidence produced before him gives rise to suspicion, but not grave suspicion, then he is entitled to discharge the accused. In the exercise of jurisdiction under section 227 of the CRPC, the judge under the CRPC is a senior and experienced judge, and he cannot act merely as a post officer or a mouthpiece of the prosecution. He has to consider the broad probabilities of the case and the total effect of the evidence and the document produced before the court and any basic infirmities appearing in the case thereon. However, it does not mean that the court should hold a mini trial at this stage. The weight of the evidence and the credibility of the evidence at that stage is not to be determined. तो जनरली आपको कुछ बता देता हूँ और भी डिस्चार्ज के प्रोविजन कहाँ है। एक तो आपका सेशन ट्रायल में 227 में, दूसरा आपका डिस्चार्ज का प्रोविजन आता है सेक्शन 239 ऑफ द सीआरपीसी में, जो वारंट ट्रायल में जब मैजिस्ट्रेट किसी को डिस्चार्ज कर सकता है। देन थर्ड इज अंडर सेक्शन 245 ऑफ द सीआरपीसी, जहाँ पे वो डिस्चार्ज कर सकता है। बोथ सिचुएशंस वारंट ट्रायल पे हैं। 245 में तब डिस्चार्ज होता है व्हेन द केस इज इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। ऑलराइट, पर एक सवाल ये आता है कि क्या समन्स केस में डिस्चार्ज किया जा सकता है? तो आंसर इज नो। समन केस में डिस्चार्ज का कोई प्रोविजन ही नहीं है, तो उसमें तो डिस्चार्ज हो ही नहीं सकता। तो आप मुझे ये बताइए, आप एक बार ये सोचिए कि अगर आपको समन केस में किसी को डिस्चार्ज करवाना है तो आप कैसे करवाएंगे? हाउ विल यू डू दैट? बिकॉज इफ यू लुक एट सेक्शन द प्रोविजन ऑफ समन्स, तो उसमें फॉर्मल चार्ज एक तो बनाने की जरूरत भी नहीं, और अगर आप पूरा समन्स का प्रोविजन पढ़ेंगे
फ्रॉम सेक्शन 251 to 259 यू विल फाइंड कि वहाँ पे डिस्चार्ज का कोई प्रोविजन ही नहीं है। वहाँ पे तो सीधे आपको बुलाना है और उसके बाद टेक द ट्रायल टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, जो कि अक्विटल या कन्विक्शन में ही हो सकता है, ट्रांसफॉर्म होगा। तो ऐसे केस में इफ यू वांट टू डिस्चार्ज टू गेट एन अक्यूज डिस्चार्ज, तो कौन सी रेमेडी लेंगे? आंसर इज दैट यू कैन रिजॉर्ट टू द एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडी अंडर सेक्शन 482 ऑफ द CRPC। And what is 482 of the CRPC? That is the inherent power of the High Court. So if you want to discharge the accused at the interlocutory stage, you can resort, in the summon case only, in the summon case you can resort to section 482 of the CRPC. This issue has been dealt with by Supreme Court in Subramaniam Sethuraman versus State of Maharashtra. Alright. तो 2 points और हैं इस केस को लेके कि अब आप मान लीजिए इन प्रोविजंस को लेके कि लेटर की ट्रायल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्ट कर सकता है, तो लिखा है लेटर सपोज कि ट्रायल शैल बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओनली। बट क्या एक इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन डिफैक्टो कंप्लेनेंट कर सकता है सेशंस केस में? क्या सेशंस केस में ये पॉसिबल है कि जो कंप्लेनेंट है वो अपना एक इंडिपेंडेंट ट्रायल करे, अपना लॉयर अपॉइंट करे, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को वहाँ पे नहीं अपॉइंट करे? वो कहते कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं ट्रायल कंडक्ट करेगा, कंप्लेनेंट कहते मेरा लॉयर है, मैं अपना लॉयर अपॉइंट कर रहा हूँ, वो ट्रायल कंडक्ट करेगा। क्या ऐसा किया जा सकता है? एंड इज इट पॉसिबल टू रिमूव द पब्लिक प्रोसिक्यूटर फ्रॉम द स्टेज ऑफ द सेशंस ट्रायल? आंसर इज नो। आई टेल यू व्हाई। देखिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज अ वेरी पेक्यूलियर पोजीशन इन अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। The public prosecutor is not expected to show a thirst to reach the case in conviction. The public prosecutor is the appointee of the state and it is his duty to arrive at truth. वो state का तो officer है ही, but at the same time he is also the officer of the court. और public prosecutor does not have enmity against the accused. वो तो अगर पाएगा कि अगर accused guilty है तो वो कोशिश करेगा कि इसका conviction हो जाए। लेकिन if let us suppose on the material submitted to the public prosecutor, क्योंकि चार्जशीट जाने से पहले जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से भी जनरली कंसिडर करते हैं, उसका व्यूज और ओपिनियंस ले लेते हैं बिफोर सेंडिंग द चार्जशीट टू द मैजिस्ट्रेट, अगर केस में सेशंस केस इन्वॉल्व्स अ केस ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। तो जनरली पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी एक रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है टू अराइव एट ट्रुथ ऑफ द मैटर। तो उस पे ये बाउंटेन ड्यूटी लगाई गई है कि एक सिर्फ थर्स्ट फॉर कन्विक्शन आपके अंदर नहीं रहेगी, यू हैव टू ऑल्सो सी कि आपको ट्रुथ पे अराइव करना है, कि ये भी देखना है कि एक इनोसेंट अक्यूज सफर ना करे इन दिस सिचुएशन। और दूसरे हैंड पे अगर किसी प्राइवेट काउंसिल को, कंप्लेनेंट ने अगर किसी प्राइवेट काउंसिल को अपॉइंट किया और अगर उसको कोर्ट्स ने फ्री हैंड कर दिया टू कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन, देन ये जो काउंसिल, जो प्राइवेट काउंसिल जो अपॉइंट हुआ है, इसको तो हर हाल में क्योंकि वो अपॉइंट ही इसलिए हुआ है क्योंकि जिससे वो कन्विक्शन करवा पाए। तो ऐसे केस में ट्रुथ की इंक्वायरी कहाँ पे हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। सो दिस इज व्हाई द पार्लियामेंट अप्लाइड अ ब्राइडल ऑन दिस सब्जेक्ट एंड इंक्लूडेड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर दिस रोल, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर दो मैटर्स को रिप्रेजेंट करता है, एक स्टेट को भी और एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी है। तो कन्विक्शन तो उसकी ड्यूटी है वेयर द अक्यूज्ड ही डीम्स द अक्यूज्ड टू बी गिल्टी, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो हिज ड्यूटी टू अराइव एट ट्रुथ। लेकिन एक प्राइवेट काउंसिल जब अपॉइंट किया करेगा अगर कंप्लेनेंट, तो उसको इसी बात के लिए पे कर रहा है कि वो कन्विक्शन करवा पाए। तो ऐसे केस में अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट होने का बहुत बड़ा खतरा होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर performs an overall supervisory function, and अगर privately engaged counsel है भी ऐसे केसेस में, तो वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शंस पे काम करेगा। इट इज नॉट अलाउड टू सप्लांट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। आप एक कंप्लेनेंट ये जरूर कर सकता है कि अपना भी काउंसिल अपॉइंट कर दे
to assist the public prosecutor, but it is in no way permissible to supplant the public prosecutor, क्योंकि public prosecutor को सीन से रिमूव ही कर दें और सिर्फ अपना लॉयर से प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करवाएं, ठीक है। और ये भी बात ध्यान में रखना चाहिए कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज ऑल्सो सीनियर ऑफिसर, एक सीनियर ऑफिसर होता है। इसके लिए अच्छा ये जो डिस्प्यूट उठा था ये क्यों उठा था? बिकॉज इफ यू रेफर टू सेक्शन 301 एंड 302 ऑफ द CRPC, तो वहां पे दो अथॉरिटीज को बहुत ज्यादा लीवे दिया गया है। तो 301 तो कहता है कि किसी भी केस में बिना किसी रिटन अथॉरिटी को किसी भी क्रिमिनल केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर्ग्यू कर सकते हैं, दे कैन रिप्रेजेंट। और अगर प्राइवेट पर्सन ने किसी प्लीडर को अपॉइंट किया है अपने क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट करने के लिए, तो वो जो भी प्रोसिक्यूशन करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ द केस के डायरेक्शन में करेगा, वो ओवरऑल सुपरविजन कंडक्ट करेगा। तो इससे ये बिलीव दिमाग में आ रहा था कि प्राइवेट पर्सन तो अपॉइंट हो सकते हैं फॉर कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन, ये तो बेयर रीडिंग से पता चल रहा है, पर क्या प्राइवेट पर्सन सप्लांट हो सकते हैं, ये एग्जैक्टली क्लियर नहीं था। और देन यू रेफर टू सेक्शन 302 सबसेक्शन 2। 302 का सबसेक्शन 2 कहता है कि एनी पर्सन कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन में डू सो आइदर पर्सनली और बाय प्लीडर। तो सबसेक्शन 1 तो मैजिस्ट्रेट के ऊपर अप्लाई करता है, पर सबसेक्शन 2 वाज बिट वाइडर इन स्कोप। तो ये से इंटरप्रेट करने की कोशिश की गई बाय द आर्गुमेंट कि डी फैक्टो कंप्लेनेंट अगर चाहे तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बिना भी पर्सनल कैपेसिटी में कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 301, 302 और 225 ऑफ द CRPC एक साथ पढ़ा, एंड इट अराइव्ड एट अ कंक्लूजन कि अगर हमने ये जो आर्ग्यूमेंट जो डिफैक्टो कंप्लेनेंट का है मान लिया कि आप इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं एंड यू कैन सप्लांट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड विदाउट हिज डायरेक्शंस, तो ऐसे केस में इट कैन बी अज्यूम्ड कि सेक्शन 225 ऑफ द CRPC विल बी रेंडर्ड नेगेटरी। 225 CRPC क्या कहता है? ट्रायल ऑफ द सेशंस कोर्ट शैल बी कंडक्टेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। शैल शब्द का यूज है, कोर्ट ने माना ये मैंडेटरी क्लॉज है, इट हैज टू बी कंडक्टेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देन इट रेफर्ड टू सेक्शन 301 एंड 302। तो कोर्ट ने पाया कि यही सारी जो बात मैं बता रहा था, सुपरवाइजरी रोल है और साथ में इट इज द ड्यूटी ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू अराइव एट द ट्रूथ। प्राइवेट काउंसिल तो सिर्फ माइंडलेसली कन्विक्शन को ही पाने की कोशिश करेगा। सो इन ऑर्डर टू गेट अवे फ्रॉम दीज सिचुएशंस, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि a de facto complainant cannot do an independent prosecution without the help of the public prosecutor। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सुपरविजन में ही हो सकता है अगर आप उसके असिस्टेंस के लिए कोई लीगल काउंसिल लगाना चाहते हो, लेकिन जनरली इट इज नॉट अलाउड। आप इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन नहीं करवा सकते। अब आप सेक्शन 301 का सबसेक्शन 2 पढ़ेंगे तो वो कहेगा कि if any private person instructs a pleader to prosecute any person in court, public prosecutor or assistant public prosecutor in charge of the case shall conduct the prosecution, and the pleader so instructed shall act therein under the direction of public prosecutor or assistant public prosecutor। Subsection 2 सीधे बोल रहा है कि जो भी प्लीडर आपने किया है वो अगेन उनकी सुपरविजन में काम करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। और सेकेंड है कि 302 का सबसेक्शन 2 कि आप फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन आप पर्सनली भी कर सकते हैं, प्लीडर अपॉइंट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यू कैन सप्लांट दोज अथॉरिटीज, यू कैन नॉट सप्लांट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन दिस केस। सो सेशंस ट्रायल में इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन बाय डी फैक्टो कंप्लेनेंट इज नॉट परमिसिबल। अच्छा, ये किस केस में डिसाइड हुआ? ये शिव कुमार वर्सेस हुकुमचंद में डिसाइड हुआ। कोर्ट आफ्टर रेफरिंग टू दिस प्रोविजन 301, 302 and 225 of the CRPC came to this conclusion that it is not permissible to supplant or replace the public prosecutor, all right, and conduct an independent prosecution। उसके वही reasons हैं जो मैंने अभी पहले बताए। एक तो प्राइवेट काउंसिल का अपना इंटरेस्ट, प्राइवेट इंटरेस्ट होता है उनका। दूसरा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर परफॉर्म्स अ डुअल फंक्शन, फाइंडिंग गेटिंग द कन्विक्शन फॉर द गिल्टी एंड ऑल्सो असिस्टिंग द कोर्ट इन अराइविंग एट द ट्रूथ। ये बर्डन उस पर नहीं है प्राइवेट काउंसिल पे। तीसरा चीज़ है कि अगर हमने ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अगर ऐसा व्यू हमने अलाउ कर दिया तो वो सेक्शन 225 और फिर उसके बाद
225 को नेगेटरी कर देगा. Section 225 will be rendered nugatory if such a view is allowed by the court. So that is why Supreme Court came to a conclusion that independent prosecution by a de facto complainant is not permissible in a Sessions case. Next in line I have to tell you कि that is हुकुम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जजमेंट जो उस पे है. ये अभी मैं क्या कहते हैं 226, 227 और 225 के ही बीच में हूँ, अभी ऐसे आगे नहीं बढ़ा हूँ. सो इन दिस it states, in a trials before the court of session, the prosecution shall be conducted by the public prosecutor. Section 226 of the court enjoins him to open up his case by describing the charge brought against the accused. He has to state what evidence he proposes to adduce for proving the guilt of the accused, and if he knew at that stage itself certain persons cited by the investigative agencies as witness might not support the prosecution case, he is at the liberty to state before the court that fact. Alternatively, he can wait further and obtain direct information about the version which any particular witness might speak in the court. If that version is not in support of the prosecution case, it would be unreasonable to insist on the public prosecutor to examine those persons as witnesses for prosecution. This case, Hukum Singh versus State of Rajasthan, do not confuse it with the case I just mentioned, Shiv Kumar versus Hukum Chand. ये Hukum Singh versus Rajasthan है. This is an authority on what? कि कोर्ट कभी भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ये कंपेल नहीं कर सकता है कि आपने इन विटनेसेस को क्यों नहीं बुलाया, जो हो सकता है आपका केस ना सपोर्ट करे. Let's suppose a list of witnesses filed and prosecution only proposes to examine only 7 to 8 witnesses. बाकी के जो witnesses हैं जिन्होंने पुलिस के सामने स्टेटमेंट दिया 161 पे, कोर्ट बोलेगा कि आप उनको क्यों नहीं एग्जामिन करना चाहते, उनको भी बुलाइए. तो कोर्ट ऐसे में एक तरीके से बता रहा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि आप प्रोसिक्यूशन कैसे कंडक्ट करो. दैट इज नॉट परमिसिबल, क्योंकि प्रोसिक्यूशन को अगर मान लीजिए लगता है कि these persons जिनको मैं एग्जामिन नहीं कर रहा हूँ कोर्ट के अंदर, ये मेरा केस नहीं सपोर्ट करेंगे, they will not support my case. So in that situation ये हो सकता है कि accused ने उनको threaten किया हो, या they might be hostile witness, बहुत reason हो सकते हैं. So in those situation it is not permissible for the court to demand public prosecutor to summon those persons whom it does not propose to examine. ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था टेली जुडिशियल सर्विस में कि क्या कोर्ट कैन कंपेल द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू एग्जामिन दोज पर्संस हु इज नॉट रेडी एंड विलिंग टू एग्जामिन. The answer is no. इस जजमेंट में आंसर कर दिया गया है, और इसका सिंपल सा रीजन ये है कि अगर आप सेक्शन 226 को ध्यान से पढ़ें तो कहता है कि when the accused appears or is brought before the court in pursuance of commitment of the case under section 209, prosecution shall open his case by describing the charge brought against his accused and stating by what evidence he proposes to prove the guilt of the accused. तो गिल्ट प्रूव करने के लिए वो जो विटनेसेस लाएगा, दैट इज डिफरेंट थिंग. ऑलराइट, तो वो ऐसे कोई विटनेस क्यों लाएगा जो गिल्ट ही ना प्रूव करें. 226 तो मैं वही तो बताता है ना कि कौन सा वो एविडेंस देगा या कौन से विटनेस को एग्जामिन करेगा विच विल प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज. सो बाय द वर्च्यू, इफ अगर आप सेक्शन 26 को में इसी पार्ट पे गौर करें, by stating what evidence he proposes to prove guilt of the accused, then it means कि court cannot compel the public prosecutor and oblige him to examine all the witnesses जो 161 में हुआ है. It is very open to public prosecutor to only call those witnesses who will support his own case. आप नहीं बता सकते कि prosecution कैसे वो conduct करे प्रोसिक्यूशन. अगर उसको लगता है उसके एविडेंस वो सपोर्ट नहीं करेंगे और गिल्ट नहीं साबित कर पाएंगे या मेरे प्रोसिक्यूशन केस को ही हैम्पर करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे केस में प्रोसिक्यूशन इज नॉट बाउंड टू एग्जामिन देम. अब आप कहोगे कि ऐसे तो अक्यूज्ड के खिलाफ कहीं अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट नहीं होगा, तो मैं कहता हूँ कि उसको आपको प्रोसिक्यूशन के साथ बुलाने की क्या जरूरत है. यू कैन ऑलवेज हैव रिजॉर्ट टू सेक्शन 311 रेड विद 165 ऑफ दिस इंडियन एविडेंस एक्ट. 311 में आप कोर्ट विटनेस की तरह उसे बुला लीजिए,
खुद एग्जामिन कर लीजिए, प्रोसिक्यूशन को क्यों कंपेल करवा रहे हैं? कॉल अपना विटनेस बुला लीजिए, कोर्ट विटनेस बुला लीजिए अंडर सेक्शन 311 रेड विद सेक्शन 165 इंडियन एविडेंस एक्ट। दूसरा, अगर वो डिफेंस को सपोर्ट कर रहे हैं तो डिफेंस विटनेस बन जाए, नहीं डिफेंस की साइड से आ जाए, डिफेंस विटनेस बुला ले। यू कैन नॉट जस्ट कंपेल द प्रोसिक्यूशन टू हैम्पर हिज ओन केस। ये तो पूरा फेयर ट्रायल के रूल के खिलाफ होगा। प्रोसिक्यूशन मस्ट ऑल्सो बी गिवन एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट इस केस इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ठीक है, अब हम आते हैं चार्ज फ्रेमिंग पे। मोस्टली मोटा मोटा वी हैव डन विद एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू सेशंस चार्ज डिस्चार्ज एप्लीकेशन। अब हम लोग चार्ज फ्रेमिंग के स्टेज पे आते हैं। तो आई डोंट थिंक कि चार्ज फ्रेमिंग का आज सब कुछ कंप्लीट हो पाएगा, चार्ज फ्रेमिंग का थोड़ा टाइम लगेगा। और बाय द वे, जो चार्ज फ्रेमिंग और डिस्चार्ज की जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये काफ़ी कुछ सेम रहेंगी मैजिस्ट्रेटल ट्रायल पे। तो इसीलिए यहाँ पे इतना डिटेल से होल्ड हो रहा है, जैसे मैजिस्ट्रेटल ट्रायल में आपको पढ़ने में सारे कंसेप्ट आसान हो जाए। इसी से सेशंस ट्रायल में हम लोग ज़्यादा टाइम लगाएंगे, क्योंकि सेशंस ट्रायल्स को हमने ढंग से पढ़ लिया तो आपके लिए वारंट ट्रायल भी आसान हो जाएगा, वारंट ट्रायल टफ नहीं होगा। सो एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए अगर कोई भी केस ट्राई हो रहा है उसके सामने, कोर्ट ऑफ सेशन के सामने, वो पाता है वो सिविल केस है, तो ऐसे केस में वो उसके पास भी ऑप्शन अवेलेबल है टू डिस्चार्ज सच पर्सन। एक चीज और याद रखिएगा, डिले इन सीकिंग डिस्चार्ज कोई बड़ा मटेरियल ग्राउंड नहीं है, ट्रिवियल ग्राउंड है। ठीक है, कि डिले इन सीकिंग डिस्चार्ज, वो डिस्चार्ज एप्लीकेशन बहुत डिले के बाद उसने अप्लाई किया, इट इज इररेलेवेंट। डिस्चार्ज एप्लीकेशन चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज से पहले करनी चाहिए, चार्ज फ्रेमिंग के बाद नहीं हो सकती। अगर चार्ज फ्रेमिंग से पहले में चाहे जितना डिले हुआ है, अगर चार्ज नहीं फ्रेम हुआ है तो डिले इज नॉट द ग्राउंड कि जिस पे आप एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दें। और डिस्चार्ज और अक्विटल में डिफरेंस याद रखिएगा, डिस्चार्ज इज डिफरेंट, अक्विटल इज डिफरेंट। अक्विटल ट्रायल के बाद होता है। ऑलराइट, सो जब जजमेंट प्रोनाउंस करेगा जज तो वो बताएगा कि अक्विटल हुआ या कन्विक्शन हुआ। पर डिस्चार्ज चार्ज की स्टेज से पहले आता है, और अक्विटल के अपने नुआंसेस हैं और कन्विक्शन के भी अपने नुआंसेस हैं। उस पर ऑटोफॉइस कन्विक्ट और ऑटोफॉइस अक्विट की डॉक्ट्रिन लगती है। एंड यू हैव टू आल्सो रीड सेक्शन 20 आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डबल जेओपर्डी। तो ये सारी तो उस पर लगती है, बट वो डिस्चार्ज के लिए नहीं अवेलेबल है। ठीक है, सो वी कैन कंटिन्यू विद फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। इफ आफ्टर कंसिडरेशन, इफ आफ्टर सच कंसिडरेशन, देखिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। इफ आफ्टर सच कंसिडरेशन एंड हियरिंग ऑफ वाज सेड, मतलब हियरिंग हो जानी चाहिए ऑफ कंसिडरिंग द आपका डॉक्यूमेंट और मटेरियल और सबमिशंस को कंसिडर करने के बाद। वर्डिंग, लेजिस्लेचर की वर्डिंग याद रखिएगा, आपको लेजिस्लेचर की वर्डिंग्स प्राइमरली कोट करनी है। सो the judge is of the opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offence which A is not exclusively triable by the court of session, he may frame a charge। अगर exclusively court of session द्वारा ट्राइबल नहीं तो he may, यहाँ पे enabling provision है, चाहे तो कर दे, may frame a charge against the accused and by order transfer the case for trial to chief judicial magistrate or any other judicial magistrate of first class and direct the accused to appear before chief judicial magistrate or as the case may be judicial magistrate of first class on such date as he deems fit, and thereupon such magistrate shall try the offence in accordance with the procedure for the trial of warrant cases instituted from police report। ये याद रखिएगा। और B है, if it's exclusively triable by the court of session, he shall, देखिए A में ही it was may शब्द का यूज किया गया था, तो इनेबलिंग प्रोविजन था, डायरेक्टरी प्रोविजन था। कोर्ट चाहे तो वो पूरा केस ही वापस लोअर कोर्ट को रिमांड करते हो, कहते कि मेरे द्वारा एक्सप्रेसली ट्राइबल नहीं है, यू ट्राई इट, चाहे वो सीजीएम हो या मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हो, वहाँ पे चार्ज फ्रेम करने की भी जरूरत नहीं। पर बी में कहता है इफ इट्स एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, ही शैल फ्रेम अ चार्ज इन राइटिंग अगेंस्ट द अक्यूज्ड। और सबसेक्शन 2 फिर क्या कहता है 228 का, where the judge frames any charge under clause B of subsection 1
द चार्ज शैल बी रेड एंड एक्सप्लेन्ड. देखिए फिर यहाँ पे एक्सप्लेन्ड शब्द का आ गया, रेड एंड एक्सप्लेन्ड. तो अगर मियरली मैकेनिकली चार्ज बोल देना सफिशिएंट होता तो लेजिस्लेचर को वर्ड रीड के बाद एक्सप्लेन लिखने की जरूरत ना पड़ती. Verbis legis non est rescindum. From the word of law there is no departure. So अगर read शब्द के बाद and explained लगाया है कोर्ट लेजिस्लेचर ने, it means कि लेजिस्लेचर expects from the court कि चार्ज तो रीड करेंगे ओरली, उसके बाद आप अक्यूज्ड को एक्सप्लेन करेंगे. एक्सप्लेन शब्द का यूज हुआ है कि क्या चार्ज है, क्या ऑफेंस तुम्हारे खिलाफ अलेज हुआ है. ठीक है. एंड अक्यूज्ड शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी ऑफ द चार्ज और क्लेम्स टू बी ट्राइड, एंड देन ही शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी और क्लेम्स टू बी ट्राइड. तो रीड और एक्सप्लेन का महत्व आप ध्यान में रखिएगा कि मान लीजिए एक a person is accused of an offense in Uttar Pradesh, but he is a resident of Tamil Nadu. He does not understand Hindi. The local language of the court in Uttar Pradesh is Hindi. So it is not sufficient कि ऐसे तमिलियन को मान लीजिए कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया गया और उसने क्या किया कि सिर्फ चार्ज रीड किया हिंदी में, क्योंकि लोकल लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इज हिंदी, और बोल दिया कि दिस इज नाउ सफिशिएंट फॉर दिस पॉइंट. दैट इज नॉट सफिशिएंट. व्हाट ही हैज टू डू इज देन मेक श्योर कि अक्यूज्ड को उसकी लैंग्वेज में चार्ज समझ में आए, या तो उसे एक एडिक्वेट ट्रांसलेशन दे चार्ज का और उसे एक्सप्लेन करे बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर्स और बाय द अदर मैकेनिज्म्स व्हाटएवर दैट मे बी नेसेसरी. लेकिन उसे एक्सप्लेन करना अक्यूज्ड को बहुत जरूरी है. ऑलराइट. कहाँ एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है. अगर मान लीजिए मेरली रीड कर दिया और अक्यूज को सब समझ में आ रहा है कि चार्ज क्या है, क्या उसके खिलाफ है, और अपने आप ही उसे पूरी चीजें एक्सप्लेन हो गई हैं, तो ऐसे में वो क्योरेबल है इरेगुलरिटी. अगेन दैट विल बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, बट रिगर ऑफ लॉ याद रखिएगा कि दे हैव टू एक्सप्लेन द चार्ज. अब जैसे हमने तमिलियन वाला एग्जाम्पल लिया तो इसमें क्या होगा, ट्रांसलेशन एंड देन किसी ट्रांसलेटर की मदद से उसको चार्ज एक्सप्लेन किया जाएगा उसी की लैंग्वेज में, इफ एट ऑल इट इज पॉसिबल. सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश वर्सेस एलियास पप्पू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2 मार्च 2001 को डिसाइड हुआ. बोला कि चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज पे क्या देखेगा कोर्ट, वही अगेन द सेम कंसिडरेशंस हैं, काफी मिलते जुलते हैं. द कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट द मटेरियल एंड डॉक्यूमेंट्स ऑन अ रिकॉर्ड with the view to find out if the facts emerging therefrom, if taken at their face value, discloses existence of all the ingredients constituting the alleged offence. The court may, for the limited purpose, sift the evidence, as it cannot be expected at the initial stage to accept all the prosecution case as gospel of truth, even if it's opposed to common sense or the broad probabilities of the case. Therefore, at the stage of framing the charge, the court has to consider the material with the view to find out if there is a ground for presuming that the accused has committed an offence, or that there is no sufficient ground for proceeding against him, and not for the purpose of arriving at the conclusion whether the record or material placed before him is likely to lead to a conviction. Basically, Supreme Court ये कह रहा है कि अगेन वही बात reiterate कर रहा है कि आप जो हैं, जब आप जज हैं, तो आप जब चार्ज फ्रेम कर रहे होंगे या डिस्चार्ज की स्टेज कंसिडर कर रहे होंगे, तो दोनों सिचुएशन में एक चीज कॉमन है कि आपका प्राइमा फेसी केस कंसिडर करने में आपको देखना है कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस मीट आउट हो क्या. तो लिमिटेड पर्पस के लिए आपको बस इतना देखना है कि अगर प्रोसिक्यूशन का पूरी चीजें मान भी लें तभी प्राइमा फेसी केस हो रहा है या नहीं. और लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन का केस इतना अब्सर्ड है कि इंग्रेडिएंट्स भी नहीं बना रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि जज अपना कॉमन सेंस छोड़ दे और यही माने कि नहीं प्रोसिक्यूशन कह रहा है तो इट्स द गॉस्पेल ऑफ ट्रुथ. गॉस्पेल ऑफ ट्रुथ का डॉक्ट्रिन तभी तक सीमित है जब तक प्राइमा फेसी केस एस्टैब्लिश हो रहा है. ठीक है. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ये कंसिडर करने लगें कि क्या ये मटेरियल कन्विक्शन करवाएगा या नहीं. ये नहीं कंसिडर करना है कि मटेरियल इज इनफ टू कॉज कन्विक्शन. ये कंसिडर करना है कि इज इट लीडिंग टू अ ग्रेव सस्पिशन, इज इट मेकिंग आउट अ प्राइमा फेसी केस, और
in the case if I believe this material, is there a ground for presuming the accused? Is there a ground for presuming that the accused has committed the offense? इतना करना है. Conviction और acquittal के बारे में सोचना भी नहीं है. ये मैटर आएगा ट्रायल के दौरान, not at the stage of discharge. At the stage of charge framing और discharge आप मिनी ट्रायल नहीं कंडक्ट करते. एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज दो अलग अलग चीजें हैं. सेम स्टेज पे नहीं होता. आप चार्ज फ्रेमिंग के लिए अक्यूज को एग्जामिन नहीं कर सकते, अक्यूज की सुनवाई नहीं करने लगेंगे आप वहां पे. ये दोनों अलग अलग स्टेज हैं. और अगर कोई भी जज मैकेनिकली ऐसा काम करता है तो इस प्रैक्टिस को सुप्रीम कोर्ट ने डेप्रिकेट किया है और बोला है हाई कोर्ट्स को ऐसे जजेस पे ध्यान रखिए और अगर इफ नेसेसरी इन पे डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग भी करिए. इनको मैकेनिकल मैनर में नहीं करने को बोला है. यहाँ पे अभी आप प्रोसिक्यूशन का मैटर देखेंगे और उसके बाद जब एग्जामिन करना होगा तो जब वो अपना डिफेंस पे एंटर करेगा तब एग्जामिनेशन की स्टेज आती है. आप चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज पे ही उसको एग्जामिन नहीं करने लगे. सो जनरली अवॉइड दैट. ठीक है. अब आज के लिए तो आई थिंक दिस विल बी सफिशिएंट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द न्यू टॉपिक, क्योंकि नया टॉपिक शुरुआत करके बीच में छोड़ना ठीक नहीं होगा. ठीक है. व्हेन वी आर रीडिंग द सेशंस ट्रायल ना, तो अभी हम 313 पे भी जाएंगे, हम लोग 309 पे भी जाएंगे, सेक्शन 300 पे भी जाएंगे, 314 पे भी जाएंगे और जितने भी और भी जो प्रोविजंस हैं जो ओवरलैप करेंगे हम उस पे जाएंगे. सेशंस ट्रायल इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू हियर. कई ऐसे भी प्रोविजन हैं जो इसमें इंटरप्ले करेंगे, जैसे 273 भी इंटरप्ले कर सकता है. रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस कैसे होगा वो भी इंटरप्ले कर सकता है. 281 इंटरप्ले करेगा, वो 293 इंटरप्ले करेगा, 291 इंटरप्ले करेगा. सो विल डील विद ऑल दो सिचुएशन और हम बहुत डिटेल में ट्रायल को डील विद करेंगे. एक बार ये सब सेशन ट्रायल खत्म हो गया तो वारंट ट्रायल में आप वही ओवरलैपिंग सेक्शंस इंक्लूड कर दीजिएगा एंड योर आंसर विल बी मोस्ट कंप्लीट. ठीक है. सो आई थिंक दैट विल बी इनफ फॉर टुडे एंड यू कैन हैव द स्टडी नोट्स फ्रॉम द वेबसाइट.